Radhe Radhe children, Hare Krishna to all of you. First of all, let me say thanks to everyone who listened to the Bhagavad Gita shloks and they are appreciating me and they are encouraging me. Because of your encouragement, I also feel very energetic, very motivated to carry on the dreams of my spiritual master, my Guru, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada ji. Today I am making this video to share some of my very personal thoughts about Prabhupada ji, how Prabhupada ji has changed my life, how he keeps on guiding me every day, how I am proceeding in the Bhakti Marg of Krishna Bhakti, and how I have become absolutely tension free, worry less, and I am always happy. So I really need to share this, and I need to pay my thanks, to pay my gratitude to the person who has made me like this. So as you can see in the video that by now very well you have understood about whom am I talking. Yes, you all are very right. You can see Prabhupada ji's picture in the video, and I'm feeling so happy that in the video where at the back I have Radha Krishna with me, and then here I am who had no knowledge about anything, and here is my Guru, my Prabhupada ji, who has very gently, very patiently, he is guiding me, he is giving me the knowledge of true bhakti as to how I can approach to Krishna and how I can know Krishna and how I can serve Krishna, I can make Krishna happy. So the book which I refer is this book. This is my Bhagavad Gita book, Bhagavad Gita as it is, and here it is. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. I'll just show it to you, get it closer so that everybody can read it clearly. Did you see, children? Yes, this is the book. This is the life-changing book of my life. Life-changing book of my life. And Bhagavad Gita is known as the manual of life. Manual meaning whenever we are going to buy anything, any electronic good, so we get a manual in which it is clearly specified as to how to use that instrument, whether we are buying a phone or a fridge or a microwave oven or a computer, anything, the manual is there. And along with the manual, the engineer, the expert also comes from the factory to explain it to us as to how to use it so that we can have the maximum benefit of that. So this Bhagavad Gita book is the manual of our life. Like before using a mobile, we need to go to the person who knows it the best way and teach us how to use the mobile in the best manner. Similarly, for our life, we need a guidance book, which is Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita is spoken by Krishna to Arjun. And it was spoken to Arjun 5,000 years back. And it was in Sanskrit. So it's very difficult for common people to understand Sanskrit and to follow it and to apply it in the life. So this work was done by His Divine Grace Prabhupada ji. He is the person who has done such a difficult task, and it's not only he who has done it, there are many others, and I bow down to everyone with respect who all have done the translation of Bhagavad Gita from Sanskrit to English or to Hindi, and I respect all the Bhagavad Gitas because Bhagavad Gita meaning it's the word of Krishna. It is the speech of Krishna to Arjun. It's a conversation between Arjun and Krishna.
But why I rely on this Bhagavad Gita specially? Because this Bhagavad Gita is the only Bhagavad Gita which is as it is. As it is meaning without any change. No changes. And this book of Bhagavad Gita has been accepted worldwide. Worldwide. Meaning we trust a thing which is accepted by the every intellectual person of the world, like in America, in Europe, in Australia, in Africa, everywhere. This is the only Bhagavad Gita which has as it is. In English it is as it is, and in Hindi it is Yatha Swarup. That is why I trust on this Bhagavad Gita. And Prabhupada ji has clearly said that this book is as it is because Prabhupada ji has only translated. He has not changed. He has not put his own thoughts, because it's very, very important to understand the thought, the language and the meaning of the speaker, and not understanding on your own way. So this is very, very important, and Prabhupada ji has done so much of efforts. In fact, he has written 60 books, more than 60 books, and which is worldwide read. पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और प्रभुपाद की ही बुक को एज इट इज या यथास्वरूप कहा जाता है। बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में, बड़े बड़े IIMs में, और जो जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सब भगवद गीता पढ़ते हैं और प्रभुपाद जी की ही भगवद गीता पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रभुपाद जी के विषय में बताते हैं कि प्रभुपाद जी हैं कौन। प्रभुपाद जी 1965 में, अभी 2020 चल रहा है, 1965 में वो अमेरिका गए थे, और उस समय हिज एज वॉज 70 वर्ष के थे वो उस समय। और अमेरिका वो इसलिए गए थे क्योंकि उनके गुरु का नाम है भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत अच्छी, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि उनकी इंग्लिश को समझने के लिए जो है ब्रिटिशर्स और अमेरिकन जिनकी भाषा है इंग्लिश, दे ऑल्सो कंसल्ट द डिक्शनरी। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने कहा था कि वो विदेशों में जाकर के कृष्ण का प्रचार करें। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि विदेशों में क्यों जा करके प्रचार करें, यहाँ क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं हम? इस वजह से क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, बहुत निराश हो गए थे कि इंडियंस जो हैं वो रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे, वो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो ट्रू स्पिरिचुअलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ ये होता है कि हमारा जो अस्तित्व है, एक शरीर है हमारा, और इस शरीर को चलाने वाला जो हमारी अंदर आत्मा है, जिसको हम इंग्लिश में सोल कहते हैं या स्पिरिट कहते हैं, उसके अध्ययन को कहा जाता है इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म, और हिंदी में कहा जाता है उसे आध्यात्म। अध्ययन का मतलब होता है किसी भी चीज का गहरी तरीके से, अच्छी तरीके से उसके विषय में जानना, और आत्मा है हमारे अंदर जो सोल है, जो इस शरीर को चलाती है, इसको आध्यात्म कहा जाता है और इंग्लिश में स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है। तो इंडिया में लोग रीति रिवाज तो बहुत फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो ट्रू स्पिरिचुअलिज्म है, भगवान कौन है और भगवान कौन है वो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है। जैसे हम और आप अपने विषय में जितना अच्छा बोल सकते हैं, तो हमारे विषय में तो कोई और नहीं बोल सकता है। इसी तरीके से भगवान के विषय में भी सबसे अच्छा भगवान ही बोल सकते हैं, और वो भगवान ने इस बुक में कह रखा है, भगवद गीता में, और उन्होंने स्पष्ट कहा है इसमें, जो श्लोक नंबर 56 है और 57 है, श्लोक नंबर 56 और 57 ऑफ चैप्टर नंबर 18, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रयो असी में। मन मना मद भक्तों का मतलब होता है कि मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, तभी मैं तुम्हारी सभी पापों को
पाप का अर्थ ये होता है कि जाने अनजाने हमने जो गलतियां की हैं, भाई जब हमें नहीं मालूम है तो वी हैव डन मैनी मिस्टेक्स इन आवर लाइफ, वी डोंट नो। हम चलते रहते हैं, हमारे पैर के नीचे कितनी चींटी आ जाती हैं, हम कितने मच्छर मारते हैं, हम कितने कॉकरोच मारते हैं, तो क्या ये हत्या नहीं कही जाती है? बिल्कुल कही जाती है। और जो हम जीव की हत्या करते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या वो पाप नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करना हमारे अधिकार में नहीं है। जब हम किसी की जान को नहीं दे सकते हैं, हम बना नहीं सकते हैं, तो हम उसकी जान किस अधिकार से हम ले लेंगे? तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते जाते हैं अपने जीवन में और हमें मालूम भी नहीं होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपने अनजाने में ये गलतियां कर भी रखी हैं तो आप मेरे पास आइए और मैं आपकी सभी गलतियों को क्षमा कर दूंगा। ये अधिकार से और ये पूर्णतः विश्वास के साथ कौन कह सकता है? जिसके पास सारा कंट्रोल हो, जो सब संपूर्ण अधिकारी हो, वही तो कह सकता है। अब हमें तो ये मालूम ही नहीं है आज तक कि भगवान कौन है। अब हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण है। कृष्ण से भगवान स्वयं, भगवत गीता में ही ये कृष्ण ने कहा है। और 11वें अध्याय में ही हैज शोन हिज फुल विराट स्वरूप, जिसमें सभी देवी देवता उनमें समाये हुए हैं। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, माता पार्वती हैं, माता दुर्गा हैं, माता लक्ष्मी हैं, सबके सब उनके अंदर सारे देवी देवता उनमें समाये हुए हैं। तो ये सारे कंफ्यूजन्स जो हमारे माइंड में कि भगवान कौन है, और अधिकांश आप लोगों से पूछिए, मैं भी ऐसा ही कहती थी। भगवत गीता के ज्ञान के पहले मेरा भी यही मानना था कि सभी भगवान हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि सभी कैसे भगवान हो सकते हैं? जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल तो एक ही होती, टीचर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक होती है। उस जैसे एक कंट्री में प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा ना, सब प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बन जाएंगे, और बाकी सब चीफ मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। उसी तरीके से भगवान भी एक ही है और उन्हीं का ये एक्सटर्नल एनर्जी है जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा जी जो सबसे पहले कृष्ण जी से वो उत्पत्ति हुए हैं, कृष्ण जी की नाभि से, और वो हमारे सृष्टि करता है। उसके बाद विष्णु जी हैं और विष्णु जी हमारे पालनहार हैं, और शिव भगवान हैं, शंकर जी जो कि हमारे विनाश करता है। तो ये तीनों जो हैं ये कृष्ण जी से ही ये ओरिजिनेट हुए हैं, ये अलग कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है। इनका स्रोत, इनका सोर्स जो है वो भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण के बराबर भी कोई नहीं है। ठीक है, इस बात को हमें बिल्कुल प्रॉपरली समझना चाहिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम पावर, ही इज द एब्सोल्यूट पावर, ही इज ऋषिकेश। As in shloks I have said that Rishikesh is the complete controller, absolute controller of our senses. Senses मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से अपने हिसाब से हम देख रहे हैं, नहीं, वो चॉइस हमको जरूर है, लेकिन इसमें पावर किसने दिया? बहुत लोगों के पास आंखें होती है लेकिन वो देख नहीं पाते हैं, मुंह होता है वो बोल नहीं पाते हैं, कान होते हैं सुन नहीं पाते हैं, नाक तो है लेकिन सूंघ नहीं पाते हैं, और मुंह होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाते। इसका मतलब इसमें जो पावर है, देखने की हो या सुनने की हो, बोलने की हो या किसी चीज को व्यक्त करने की हो, ये पावर हमको दी गई है। ये पावर हमें कृष्णा ने दिया है, तभी उनको कहा जाता है ऋषिकेश। अब ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? ये सारी बातें हमें भगवत गीता से पता चली है, और हमें समझाया किसने? हमें समझाया है AC भक्तिवेदांत प्रभुपाद जी। अब हम इनके जो प्रयास हैं, जो मेहनत उन्होंने किया है, जिस कारण मेरा मन हमेशा उनके प्रति दंडवत प्रणाम में रहता है। हमेशा मुझे लगता है मैं कुछ करूं उनके लिए ताकि वो खुश हों कि मैं उनकी स्टूडेंट हूं। जैसे सभी बच्चे अपने टीचर को खुश करना चाहते हैं और जो टीचर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वही करना चाहते हैं, उसी तरीके से प्रभुपाद ये कहते हैं दैट ही हैज़ रिटन सो मेनी बुक्स एंड प्रभुपाद लिव्स इन हिज बुक्स।
So if I have to pay the true respect, the true gratitude to my teacher Prabhupada, the best way is first of all read the books and then teach others also, so that all of us, first of all, we come to know who we are and then who is God and what is the connection between me and God. Once we understand that our soul is a part of the Supreme Soul. The Supreme Soul, can we see the picture at the back of me? Yes, that's the Supreme Soul. Krishna and Radha. Radha Rani is the internal potency. उनकी वो आंतरिक शक्ति आत्मा है कृष्णा की. और जब हमें ये पता चल जाता है कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा. कभी उन्होंने देखा है कृष्णा की कोई भी पिक्चर जिसमें कृष्णा टेंशन में है? बाकी जो देवी देवता है वो तो अस्त्र शस्त्र लेकर के रहते हैं, लेकिन क्या कृष्णा को हमने कभी देखा है कि उन्होंने कोई शस्त्र उठाया है? हाँ, उठाया है, सुदर्शन चक्र उठाया है, लेकिन जब जरूरत पड़ी है, लेकिन वो भी स्माइल करते हुए, वो भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि सारे ये जो सोल्स हैं ये मेरे ही पार्ट हैं, और जो वो लीला करते हैं किसी को समाप्त करने के लिए या किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, वो हमारे लिए है, ताकि हम समझ पाएं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें कृष्ण का सहारा मिले, हमें कृष्ण का सपोर्ट मिले. कृष्ण तो है ही हमारे अंदर, लेकिन ये हमें पता चल जाए. तो प्रभुपाद जी ने 1965 में, जब उनकी एज 70 ईयर्स की थी, 70 वर्ष की थी, उस समय प्रभुपाद जी अमेरिका गए, क्योंकि इंडिया के लोग उनकी बात नहीं समझ रहे थे. और इंडियंस की एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि वो विदेशियों की नकल करते हैं बहुत अच्छी तरीके से. किस तरीके से वो पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या फैशन करते हैं, ये सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं और कॉपी करना चाहते हैं. इसलिए प्रभुपाद जी, जैसा कि उनके गुरु ने कहा था, वो अमेरिका गए और अपने साथ में वो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रंक भर के भगवद गीता और भागवतम लेकर के गए. और जब वो अमेरिका गए, आप सोच सकते हैं कि 70 इयर्स के व्यक्ति जब अमेरिका गए और वहाँ इतनी ठंड पड़ती है, और जब वो जा रहे थे जहाज़ से, तो उस जहाज़ में उनको 2 हार्ट अटैक भी हुआ. और जो जहाज़ के कैप्टन हैं, उन्हें जब बाद में पता चला कि वो व्यक्ति जो पूरे विश्व में कृष्ण का प्रचार कर रहा है और वो व्यक्ति मेरे ही जहाज में गए थे, तब उन्होंने बताया कि एक रेड सी है जो इंडिया से अमेरिका जाने में बीच में पड़ता है, रेड सी, जो कि बहुत ही स्टॉर्मी है, बहुत ही तूफानी है. उस समय जब प्रभुपाद जा रहे थे उस जहाज में, उसमें बिल्कुल शांति थी, और वो कैप्टन हैरान थे कि ऐसा कैसे है. वो इसलिए है क्योंकि तब बाद में पता चला उस कैप्टन को कि ये प्रभुपाद, जिनको हम कृष्ण कृपा मूर्ति कहते हैं, वो उस जहाज में जा रहे थे, और इसीलिए समुद्र भी शांत हो गई थी. तो हम समझ सकते हैं कि इनकी क्या पावर है. ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग. ये दिखते हैं जैसे कृष्ण आए थे अवतार लेकर के, और हम लोग समझते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हम लोगों की तरह है, थोड़ी पावर ज्यादा है उनके पास. ठीक है, उसी तरीके से जो गुरु हैं, गुरु महाराज हैं, वो कृष्ण से अभिन्न हैं, अलग नहीं हैं, और वही गुरु महाराज हमें कृष्ण को दे सकते जिनके पास खुद कृष्ण हो. इसलिए प्रभुपाद जी को कृष्ण कृपा मूर्ति कहा जाता है, वही हमें कृष्ण को दे सकते हैं. फिर जब वो अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जो फॉरेनर्स थे वो उस समय ड्रिंकिंग हैबिट उनकी बहुत ज़्यादा थी, नॉनवेज खाते थे वो लोग, स्मोकिंग करते थे, सब कुछ करते थे. और प्रभुपाद जी ने वो सब कुछ टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया. और जब वो फॉरेनर्स ये देखते थे कि ये एक ऐसे सज्जन हैं, ऐसे संत हैं जो कि कभी नाराज नहीं होते हैं, और हम उनके साथ बैड बिहेव भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें प्रसाद बना के खिलाते हैं, और संस्कृत के श्लोक जो कि इतने सुंदर है सुनने में, वो हमें समझाते हैं. तो धीरे धीरे वो सब उनके डिवोटीज बन गए. जो अभी हम बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि प्रभुपाद जी के साथ जो है सारे फॉरेनर डिवोटीज हैं, ये वही डिवोटीज हैं जिनको प्रभुपाद जी ने सारे उनके जो पुरानी गलत आदतें थी वो सब कुछ छुड़वा दिया. और उनके पास कौन सी पावर थी? भगवद गीता, भागवतम
और महामंत्र का पावर। तो ये हैं प्रभुपाद जी, जिनका मिशन उद्देश्य जीवन का कि सब व्यक्तियों के पास कृष्ण का प्रचार हो, ताकि जो हमें सच्ची हमारी खुशी है, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसके विषय में हमें पता चले। और हमारी सच्ची सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ देंगे। जिस प्रकार से द्रौपदी, जबकि उनके परिवार में सब कोई थे, वो अपने राजमहल में थी और वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। किसके किसके सामने हुआ था? उनके 5 पति वहाँ पे थे, आचार्य द्रोण थे, भीष्म पितामह थे और धृतराष्ट्र थे और सभी लोग थे वहाँ पर। कौन नहीं उपस्थित था? और सबके सामने उनके साथ इतना जघन्य दुर्व्यवहार हुआ था। तो उस समय उनको कौन बचाने के लिए आया था? कृष्ण आए थे। सुदामा की रक्षा किसने की? कृष्ण ने की। वृंदावन वासियों की रक्षा किसने की? कृष्ण ने की। रुक्मिणी को किसने शिशुपाल के जो है चंगुल से बचाया? कृष्ण ने बचाया। तो जब हमें मालूम है कि कृष्ण ही भगवान हैं और कृष्ण ही हमें बचा सकते हैं, तो हम क्यों न कृष्ण को पालें। और यही चीज़ प्रभुपाद हमें बताने के लिए आए हैं कि कृष्ण भगवान हैं और बहुत सरल तरीका है। सिर्फ एक बार सच्चे मन से ये कहना होता है, कृष्ण हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, बस। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपने मन में करना होता है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपना काम नहीं करना है, सारे काम करने हैं। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, सारे काम आप करते रहो। लेकिन अपने माइंड में ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं, ये जो हमें बॉडी मिली है, ये जो माइंड है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये हमें दिया किसने है? तो जिसने दिया है, क्या हमें उसे याद नहीं करना चाहिए? इसके देने वाले हैं कृष्ण। तो इसलिए हमें सारे काम करना है। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम सब्जियों को जब देखते हैं अपने सामने, टमाटर देखिए, बैंगन देखिए, करेला देखिए, उनके कलर्स देखिए और आप सोचिए कि कृष्ण कितने सारे कलर्स बनाए हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फ्लावर्स आप देखिए, क्या हम इसमें इतनी सुंदर शेडिंग कर सकते हैं? चिड़िया देखिए, आप ट्रीज देखिए, ठीक है, कहीं भी आपको कुछ भी जो दिखता है वो सारी कृष्ण की क्रिएशन है। तो अगर आप ये सोचते हैं हमेशा कि हमें कृष्ण ने बनाया है और ये सारी चीज़ें कृष्ण ने बनाया है और हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं कि हम खुद कौन हैं, कृष्ण कौन है और हमारा कनेक्शन क्या है, और कृष्ण का प्रचार कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं, ताकि हर व्यक्ति खुश हो जाए। आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, तो रुपया है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये नहीं मालूम है कि हमारे साथ परमानेंट रिश्ता किसका है। सब के सब टेम्पररी हैं, कभी आते हैं, कभी छोड़ के चले जाते हैं, कभी आते हैं, कभी